we have started chapter 2 and hope you all are studying at home, practicing math, because daily math practice is very important, and hope you all are practicing that. And I have completed till exercise 2A, so you all have completed 2A, and if you have not, then please complete it, because you will be late and your syllabus will be more, and you will be it will be problem for you only to complete your syllabus. Okay, now today we will discuss, or we will study about exercise 2B. Chapter 2 exercise 2B is about multiplication of rational number, that multiplication of fractions. Now multiplication of fractions is multiplication कैसे होता है? Multiplication of fractions is product of numerator divided by product of denominator. सी फ्रैक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर जब a बाई b फॉर्म में होता है वो होता है फ्रैक्शन. ठीक है, उसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं. नाउ इन a बाई b फॉर्म, ये a बाई b फॉर्म है, इसमें ये न्यूमरेटर होता है अपर वन और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर. ठीक है. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, हाउ टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ fractions. Now today we are going to study about multiplication of fractions. Now when multiplication of fractions is given, multiplication of two fraction number is given, we will first multiply the two numerators and then multiply the denominator. If it is given more than 2, then that also in the same way. First multiply the numerators and then product of the denominator. Okay, in this way. For example, a by b into c by d, it is given. Now how to do product of numerator? Product of numerator it is given. Now numerator is a and in this case numerator is c. So a into c and product of denominator, that is b into d. So ac by BD. This is the rule of multiplication of fractions. Okay, according to this rules only, means you all know this, how to do this one. Just to explain you in a broader way, I am explaining how to do the thing. These things you should keep in your mind. Now we will do some questions so that you will be able solve the questions related to this. Okay, now can I rub this one? And students, please, if you have any problem, do comment and ask questions. Okay, I am here to give you the answer so that my students can understand me, so that my students can bring good marks, so that their future can be good. I am here to do that, for that only. Okay, now let's do some questions related to multiplication of fractions so that your doubts will be clear or your thing will be clear. For example, 5 by 8 into 3 by 4. 5 by 8 multiplication दिया है 3 by 4. Okay. Now because ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, हम हमेशा डिवीजन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर सकते हैं. न्यूमरेटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, ओनली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन डिवाइड. सो इन दिस केस वी कैन नॉट डिवाइड दिस वन, वी कैन नॉट डिवाइड दिस वन ऑल्सो, वी कैन नॉट डिवाइड दिस वन, इवन दिस वन ऑल्सो वी कैन नॉट डिवाइड. सो डायरेक्टली वी विल मल्टीप्लाई. सो न्यूमरेटर 5 3 जा 5 into 3 and 8 into 4. So 5 3 जा 15, 8 4 जा
32. Okay, so it means when we are multiplying two fraction number 5 by 8 into 3 by 4, that is 5 3 जा 15, 8 4 जा 32. ओके, इसी तरह से आप धीरे धीरे क्वेश्चंस और आगे करेंगे. ठीक है, ये तो हमें सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है. अब हम थोड़ा और डिफरेंट वे में देखते हैं. 14 by 25, ये जस्ट एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू. ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. 14 by 25, 14 by 25 मल्टीप्लाई 35 by 51, 51 multiply 34 by 49, 34 by 49. Okay, we are going to multiply these three numbers. We have multiplied this one. Now we are going to multiply these three number. How to multiply? पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे. सबसे पहले किसी भी जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है. ओके, सो दैट कैलकुलेशन ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा. अदरवाइज समटाइम्स कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाते हैं. ओके, एंड इफ इट इज़ नॉट देयर, केयरफुली यू शुड मल्टीप्लाई एंड गेट द रिजल्ट 1 by 1. फॉर एग्जाम्पल 14, अगर आपका कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले 14 into 35 करिए. ठीक है, वट एवर रिजल्ट इज देयर यू मल्टीप्लाई 34 विद दैट. ओके, इफ together you are multiplying the three numbers, mistakes can be there. Okay, so 1 by 1 you multiply. First of all हम देखते हैं कैंसिल होगा या नहीं होगा. See, ये 14 है, ये 49 है. न्यूमरेटर, दिस वन इज डिनोमिनेटर. मल्टीप्लिकेशन है, हम कोई भी कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम नहीं कर सकते. ओके, नाउ 7 2 जा 14, 7 7 जा 49. ओके, हो गया. नाउ 5 से इसको देख लेते हैं. 5 5 जा 25, 5 7 जा 35. हो गया. नेक्स्ट 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 7 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ 51 बचा है, यहाँ पे 34 बचा है. 51 किसके टेबल में जाता है? यस, 13 के टेबल में. एंड 34 देख लेते हैं. 13 कितने जा 51 होता है? Yes, of course. You multiply it by yourself and get the result. Yes, okay, very good. Yes, I am waiting for the answer only. Okay, whatever it is, you have to cancel it and get the result. Okay, now let's see. 13 से आप इसे खुद से कैंसिल करिए, बिकॉज ये 13 से ही होगा. ओके, 13 कितने जा 51 होता है, 13 कितने जा ये होता है. ओके, 13 1 जा 13, 13 2 जा 36, 13 3 जा 39. तो ये 13 से तो ये नहीं हो रहा है, तो किससे होगा? 17 से कर लेना. ठीक है, जिससे भी होगा आप उसे खुद से कर लीजिएगा और डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिएगा. दैट इज 4 by 15. दैट इज 4 by 15. ओके, आई एम नॉट multiplying it, I am direct writing the answer. Okay, so 2 ja and this one will be 3 ja, 17 3 ja. ठीक है, 17 3 ja, 17 2 ja 34. Okay, 17 2 ja. Okay, now in this way you have to multiply more questions and get the result. Okay, now in multiplication, hope you have understood this one. Multiplication में मैं आपको ज़्यादा नहीं करके बताऊंगी, बिकॉज यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ ओनली. प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड देन द डाउट्स विल बी क्लियर फॉर यू. ओके, जैसे 13 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. क्यों? 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ये 34 है, नहीं होगा. 51 नहीं होगा. ऐसे करके चेक करिए होगा कि नहीं होगा. ठीक है, नाउ 17 से मैंने देखा 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, तो मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, इसी तरह से आपको भी करना है. नाउ लेट्स सी सम डिफरेंट थिंग्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन दिया होता है 3 by 4 ऑफ समथिंग. ऑफ का यूज होता है, यूज ऑफ ये यूज होता है. ऑफ, इस ऑफ का यूज होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, wherever it is used. For example, a by b
ऑफ सी, ऑफ है सी, इट मीन्स सी का, तो ए बाई बी, ऑफ की जगह पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सी, इट मीन्स नीचे कुछ नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर दैट इज ए सी बाई बी. Okay, in this way you will do. Let's start your exercise. Hope you are understanding what is the use of off. Off means multiply. Okay, let's start your exercise 2B. Students, please ask questions if you are not understanding, because explaining in class is different and explaining is online, means online classes, taking online classes is different. I know this very well. So please ask if you have any problem, and if आपको नहीं आ रहा है, जैसे आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप अपने कज़न, ब्रदर, सिस्टर, किसी से भी पूछ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए. ओके, बिकॉज दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्टडीज़. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2B. फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, जो हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल्स देखे थे उसी तरह से. एक दो मैं कर लेती हूँ, बाकी आप लोग खुद से करिएगा. फर्स्ट वन इज 3/5 एंड 7/11. फर्स्ट वन इज 3/5 एंड 7/11. यहाँ पे कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, सो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. सो 3 7 जा 21 एंड 5 11 जा 55. ओके, इन दिस वे यू हैव टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस. एक मिक्स फ्रैक्शन का मैं करके दिखा देती हूँ, आप बाकी खुद से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 9, 3 whole 6/7. क्वेश्चन नंबर 9, 3 whole 6/7 मल्टीप्लाई 4 whole 2/3. 4 whole 2/3. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन. मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में करते हैं मैंने आपको बताया था. सो 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 इज 27/7 इंटू 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14/3. ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 27. अब कैंसिल नहीं होगा, सो 9 2 जा 18. 18 इज द आंसर. ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप मुझे पूछिएगा. ठीक है, एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई है. सिंप्लीफाई मीन्स किसी भी क्वेश्चन को सिंपल वे में फर्स्ट आपको उसे सिंपल करके फिर उसे सॉल्व करना. ठीक है, इट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई. सो मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. मैंने आपको 3 नंबर्स का 3 फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताया. आप ट्राई करिए, इफ़ नहीं आता है देन मुझे कमेंट करिए. ओके, एंड आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1/3 ऑफ 24. ऑफ 24 मीन्स मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 24. इट मीन्स 1/3 इंटू 24. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. दैट इज आंसर इज 8. तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है. ओके, प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस देन प्लीज आस्क मी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक दो मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा. जो क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे कमेंट करिए, मैं फिर आपको बता दूंगी. एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4/5 पर kg. 1 kg का रेट आपको दिया हुआ है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल. पहले इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. क्यों मल्टीप्लाई करना है? बिकॉज जब भी हमें सिंगल, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, यहाँ पे हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स में और होल नंबर ये सब में मैंने बताया था. जब भी हमें किसी सिंगल यूनिट का रेट या कॉस्ट कुछ भी पता हो और बहुत का ज़्यादा का पता करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सिंगल यूनिट का फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें सिंगल यूनिट का पता है, सिंगल एक एप्पल का रेट पता है 1 kg का, और हमें कितना 3 होल 3/4 kg एप्पल्स खरीदने हैं, कितना रेट होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को करेगा. पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिएगा, देन मल्टीप्लाई इट. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू try all these questions. Whichever question you are not able to do, comment me and ask me. Okay, and
आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी प्रॉब्लम होता है मुझे पूछिए, नहीं आएगा मैं हेल्प करूँगी, बिकॉज इसी से आपको अपने फर्दर स्टडीज़ में भी हेल्प होगा। ओके, थैंक यू क्लास।